तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच त्रिभाषा नीति को लेकर विवाद लगातार जारी है। सोमवार को एमके स्टालिन ने धर्मेंद्र प्रधान को अहंकारी कहा। स्टालिन ने कहा कि वो खुद को राजा समझकर अहंकार से बात करते हैं। प्रधान अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। लोकसभा में सोमवार को प्रधान ने तमिलनाडु सरकार को बेईमान कहा था। इसके बाद जवाब में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार केंद्र की पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए आगे नहीं आई है और जब ऐसा है तो कोई भी उन्हें संबंध में राजी नहीं कर सकता। सीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये बताइए कि क्या आप ये फंड जारी कर सकते हैं या नहीं, जो हमसे एकत्र किया गया था और जो तमिलनाडु के छात्रों के लिए है। स्टालिन ने धर्मेंद्र प्रधान का वो पत्र साझा किया जिसमें लिखा गया है कि तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति, 3 भाषा नीति और पीएम श्री एमओयू को अस्वीकार कर दिया है। इस पर स्टालिन ने कहा कि द्रमुक सरकार लोगों के विचारों का सम्मान करते हुए काम करती है, जबकि बीजेपी नेता नागपुर के शब्दों से बंधे रहते हैं। उन्होंने डीएमके सांसदों को निशाना बनाने के लिए प्रधान की आलोचना की और कहा कि केंद्रीय मंत्री ने फंड जारी न करके तमिलनाडु को धोखा दिया है। उन्होंने पूछा कि आप तमिलनाडु के लोगों का अपमान कर रहे हैं, क्या पीएम नरेंद्र मोदी इसे स्वीकार करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा था कि लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को लगभग 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, जब द्रमुक सदस्यों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधान ने तमिलनाडु सरकार को बेईमान बताते हुए कहा कि वो छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है और पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना पर पूरी तरह यू टर्न ले रही है। जरा सुनिए उन्होंने क्या पूरी बात कही। Within March, the last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM3. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more speakers are many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. In the same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are devouring the right of Tamil Nadu students to have a pan-Indian education model. Government of India is ready and open. Let them come back. What they have promised. I can quote the date on 15th March. 15th March, they are saying the MOU. Why the account? Let the tell. Why the account? My information, their chief minister was ready to accept that. Some super chief minister, some new person came up. My dear sister Kani Modi is here. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. She only came to me with few friends. He's the education minister, their education minister came to us. They are dishonest. This is unfortunate. It is unfortunate in democracy. They are trying to cover up their failure. They are trying to do politics. This is unfortunate, sir. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एक समय था जब तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार के साथ एनईपी पर एमओयू पर हस्ताक्षर करने को तैयार थी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के साथ कुछ सदस्य हमारे पास आए थे और उन्होंने सहमति व्यक्त की थी।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे गैर भाजपा शासित राज्य भी पीएम श्री योजना को स्वीकार कर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिबद्ध नहीं है। वो तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वो जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और लोकतांत्रिक और असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने द्रमुक पर तमिलनाडु के छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सबके लिए काम कर रही है। प्रधान के इस बयान पर डीएमके सांसद नारेबाजी करने लगे। कनिमोझी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुझे आपके बयान से दुख पहुंचा है कि तमिल बेईमान है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर आपको दुख पहुंचा है तो मैं इसे वापस लेता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।